किसने दिया? God gave the earth to परमेश्वर man ने दिया मनुष्य को to rule अधिकार करने के लिए over the earth. पूरे पृथ्वी पर। Because the Lord says, क्योंकि परमेश्वर कहता है let us make a man in our own image and likeness. कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं Let them have dominion. और वो अधिकार रखे। For what purpose God created us? क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया? The Bible says He created us to dominate and rule. उसने हमें इसलिए बनाया, बाइबल कहती है कि हम अधिकार रखें। He did not create us to be defeated, उसने हमें पराजित होने के लिए नहीं to बनाया, live a powerless life. शक्तिहीन जीवन जीने के लिए बनाया। He created us to live a dominion life उसने हमें अधिकार रखने के Rule. लिए बनाया and dominate. Hallelujah. 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 Amen. So whom the authority and power was given? किसने अधिकार दिया? To whom God has given power and authority? किसने अधिकार दिया? He gave authority and power to man. परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार He सामर्थ्य gave all power सारा अधिकार to Adam. आदम को। But what happened? क्या हुआ? Adam lost his power. आदम ने सामर्थ्य को खो दिया। How he lost? कैसे खो दिया? By submitting to the devil. उसने शैतान को अधिकार अपना दे दिया। By listening the lie of the devil. उसने शैतान के झूठ पर विश्वास कर लिया। Whatever devil told him, he did it. जो कुछ शैतान ने उससे कहा उसने किया। And when he obeyed what devil told him, और जैसे ही उसने वो किया जो शैतान ने उससे कहा था, his authority उसका अधिकार became devil's authority. शैतान का अधिकार बन गया। And from that time, और उस समय in the time of Adam, आदम की वाटिका में after Adam sinned, आदम ने जो पाप किया, devil became the god of this world. वो पृथ्वी का राजा बन गया, अधिकारी बन Who गया। became the god of this world? कौन अधिकारी बन गया? Satan. See Luke chapter 4. लूका की किताब 4 अध्याय Hallelujah. And maybe verse 5. Luke chapter 4 verse 5. Very quickly I'm going to tell you. लूका 4 अध्याय उसका Verse 5. तब शैतान ने उसे ऊपर ले जाकर पल भर में संसार के सारे राज्यों को दिखा दिया Yes. और उससे कहा, यह सारा अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि यह मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूँ उसे देता हूँ। What devil is telling to Jesus? शैतान ने यीशु से क्या कहा? He said, everything I can give it to you. उसने कहा मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। He did not say it is mine. उसने ये नहीं कहा ये मेरा है, He said it is given to me. उसने कहा ये मुझे दिया गया है। Who is telling? किसने दिया? किसने कहा? शैतान। Who is telling? किसने कहा? The devil is telling. शैतान ने कहा। Praise the Lord. My wife, you come. Give them, let's take this and receive this weapon. Praise the Lord. Hallelujah. Because I will go and go. Praise the Lord. And write down every word. और सारे वचनों को आप लिख लें। Amen. Amen. Who is talking to whom? कौन किससे बात कर रहा है? Devil is talking to Jesus. शैतान यीशु मसीह से बात कर रहा है। Listen very carefully. What he is saying? ध्यानपूर्वक सुने, देखिए वो क्या कह रहा है। I will give you everything. मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। Everything. सब कुछ। Why? क्यों? He is not saying it is me. It is mine. उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा है। He said it is given to me. उसने कहा ये मुझे दिया गया है। That means devil has no power. He had no power. इसका अर्थ ये है कि शैतान के पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है। He had no power. नहीं था. Then how he is telling it is given to me? तो वो ये कैसे कह रहा है कि ये मुझे दिया गया है? Is it written in the Bible? क्या यही आपकी बाइबल में Is लिखा it है? written in the Bible? आपकी बाइबल में देखिए यही लिखा है कि मुझे दिया गया है। It is given to me or it is mine? मुझे दिया गया है या ये मेरा है? दिया
गया है। Listen very carefully. ध्यानपूर्वक सुने Underline this word. और उस लाइन पर उस वर्ष पे पद पर लाइन बना ले, लाइन खींच ले। It shows और वो ये दिखा रहा है he had no power and authority before. वो बताया कि इससे पहले उसके पास अधिकार नहीं था, But who has given him power and authority? परंतु किसने उसको सामर्थ और अधिकार दिया? Who given him power and authority? किसने उसको सामर्थ और अधिकार दिया? जोर से बोले। आदम और हवा ने। Adam gave, not God gave him power. ओ परमेश्वर ने नहीं दिया उसे, आदम ने दिया। God gave power to Adam to rule. परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था नियंत्रण करने के लिए, Authority and power to rule. सामर्थ और अधिकार दिया था राज्य करने के लिए Whole earth. पूरे संसार में। But what happened? परंतु हुआ क्या? Adam obeyed the voice of devil. और आदम ने शैतान की आवाज पर विश्वास किया And he sold out all authority to devil. और उसने वो सारा अधिकार उठा के शैतान को दे दिया। That's why the 2 Corinthians 4:4 says, और यही कारण है कि दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है the devil became the god of this world. और ये लिखा है कि शैतान जो है God of this world. और इस संसार का राजा है। Who was the first god of this world? पहला राजा कौन था इस Who पृथ्वी was का? the first god of this world? राजा कौन था पहला इस संसार का? परमेश्वर, ईश्वर है। His name was Adam. उसका नाम था आदम। But when Adam sinned, पर जब आदम ने पाप किया by obeying the devil, शैतान के झूठ पे विश्वास करने के द्वारा, the devil began to god of this world. He began, और तब शैतान जो था वो इस संसार का राजा ईश्वर बन गया and he began to rule. और वो राज्य करने लगा। He began to bring fight between man. और तब उसने मनुष्यों के बीच में लड़ाई लगवा दी। Fight, sickness, disease, poverty, so many problems. वो लड़ाई, झगड़ा, बीमारी, आर्थिक समस्या, He made everything to destroy the mankind. और उसने सब कुछ किया इस मनुष्य को नाश करने के लिए। But the time came, परंतु जब समय आया, Jesus came on this earth. यीशु इस पृथ्वी पर आया। Hallelujah. हालेलुया। For what purpose Jesus came? क्या कारण था यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का? John chapter 3 verse 8 says, the Son of God came on this earth to destroy the work of enemy. और पहला यूहन्ना 3:8. 3:8 में लिखा कि परमेश्वर इस संसार में इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। Why Jesus came? क्यों इस पृथ्वी पर आया? He came to destroy the work of the enemy. तो शैतान के कामों को नाश करने के लिए How Jesus destroyed the work of the enemy? और यीशु ने कैसे शत्रु के सामर्थ को नाश किया? When Jesus was casting out demons, जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू किया, he was destroying the work of the enemy. तो तब तो वो शैतान के राज्य को Jesus was healing the sick. और जैसे ही यीशु ने बीमार को चंगा किया He was destroying the work of the devil. और वो शैतान के कामों को नाश करना था। But it was not permanent. और ये हमें उस तरह हमेशा के लिए नहीं था। It was not permanent. वो हमेशा के लिए नहीं था। But when Jesus defeated the devil permanently, परंतु जब यीशु ने पूरी तरह से शैतान को हराया, when Jesus defeated him, when तब उसने यीशु को शैतान को यीशु ने हराया on the cross. क्रूस पर। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Amen. हालेलुया। In Colossians chapter 2, कुलुस्सियों 2 में verse 14 and 15. 14 और 15 में Yes, listen to me very carefully. This is the way how Jesus defeated the devils on the cross. और ये कारण है कि यीशु ने क्रूस पर कैसे शैतान को हराया। Oh, church, कलीसिया, listen to very और carefully. ये ध्यानपूर्वक सुने How Jesus defeated the devil. और यीशु ने कैसे शैतान को हराया। Colossians chapter 2, verse 14 and 15. कुलुस्सियों 2 का 14 और 15 Listen very carefully. ध्यानपूर्वक सुने, बच्चे प्लीज हल्ला ना करें। Colossians chapter 2, verse 2 and 3. 14 and 15. और विधियों का वो अभिलेख Yes. हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जब उसने प्रधानों Devil had the list of our sin. और शैतान के पास हमारी जो लिस्ट है, He had the list of और our sin. लिस्ट हमारे प्रति उसके पास एक लिस्ट, एक पर्चा था। And because of the list of our sin, और हमारे जो गुनाहों की जो लिस्ट उसके पास थी, he was ruling. इस कारण वो हमारे ऊपर राज्य कर रहा था। But Jesus took all
declare to all people, look at him. He is the Lamb of God who took all the sin of the world. और जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा, उसने उस जगह पे घोषणा करी, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। Amen. Where is the place? Jesus defeated permanently the devil. और वो कौन सा स्थान था जहाँ यीशु ने हमेशा के लिए शैतान को हरा दिया? It was the cross. और वो क्रॉस था, क्रूस था। And how he defeated? और कैसे हराया यीशु ने? What was the weapon? कौन सा अधिकार था? What was the weapon? कौन सा हथियार था? Jesus used यीशु ने जो to उपयोग किया defeat the enemy. शैतान को हराने के It लिए, was the blood of Jesus. और वो था यीशु मसीह का लहू। It was his blood. लहू। That's why और यही कारण है, devil is afraid of the hearing about the blood of और Jesus. यही कारण है कि शैतान यीशु के खून को सुन के डर जाता है। He always, whenever he heard about the blood, और जैसे ही वो यीशु के लहू के बारे में सुनता है, he got afraid. और वो बहुत भयभीत हो जाता है। And the Bible says, और बाइबल कहती है ऐसा, we overcome the devil by the blood of Lamb. और बाइबल कहती है कि हमने यीशु के लहू के द्वारा उस पर जय पाई है। Amen. लहू। Amen. Do you believe in the blood of Jesus? और यदि आप विश्वास करते हैं यीशु के लहू के ऊपर, You will always laugh at the enemy. और तब तो आप जोर से हंसेंगे हमेशा शत्रु के ऊपर। Listening? सुनिए, Whenever you feel anything about the devil, जैसे ही आप शैतान के विषय में सुन के कुछ महसूस करते हैं, start meditating Colossians 2:14 and 15. हाँ, जैसे ही आप शैतान का झूठ सुनते हैं या महसूस करते हैं, तुरंत आप मनन करना शुरू करिए। कुलूसी 2 का Read loudly. 13, 14, 15। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, To whom? किसके नाम पर? हमारे नाम पर Our name. और हमारे विरुद्ध था, मिटा डाला It was against us. और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। Jesus removed all the things, list of all our sins. ओ, यीशु ने क्या करा? वो सारे गुनाहों का जो पर्चा हमारे नाम पर था, यीशु ने उसे मिटा डाला। Then what he did? तब उसने क्या किया? जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, तब What he did? उसने क्या किया? He took all his weapons. उसने शैतान के सारे अधिकारों को लिया और हथियारों को लिया। What he was on the cross, what devil was? Weaponless. Jesus took all his weapons. ओ, यीशु ने तो सारे हथियारों को तो ले लिया। Jesus destroyed his weapons. यीशु ने उसके हथियारों को नाश कर दिया। It is written in the Bible. और ये बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, Nirastra. निरस्त्र। Everybody call Nirastra. शस्त्र। Nirastra. निरस्त्र। To whom talking about? कौन ऐसा बात कर रहा है? Who became Nirastra? किसने करा? It is the devil. शत्रु। Who became Nirastra? कौन बन गया? हाँ, कौन निरस्त्र बन गया? It is the devil. शैतान। Who made him Nirastra? किसने उसको बनाया? It is Jesus. यीशु ने। By the blood of Jesus. यीशु ने अपने लहू के द्वारा, By his death. और उसने अपनी मृत्यु के द्वारा, By his burial. और नीचे दफन होने के द्वारा, And by his resurrection. और वापस पुनरुत्थान के द्वारा Jesus defeated him. शैतान को यीशु ने हरा दिया। Number 7. Hebrew chapter 2 verse 14 and 15. 2 का 14 और 15। इब्रानियों 2 का 14 और 15। Hebrew chapter 2. 2 का 14। Quickly. अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, Yes. तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया। Why Jesus became like us? क्यों यीशु ऐसा हो गया? He took the form of man. Why Jesus became like a man? क्यों यीशु मनुष्य In the flesh, in the blood. क्यों यीशु मसीह हमारे समान हो गया? To defeat the enemy शैतान को हराने के लिए, who has the power of death. और उसने मृत्यु पर जय प्राप्त करके, Read loudly. जोर से पढ़े। Hebrew इब्रानियों chapter 2 verse 14 and 15. इब्रानियों 2। Read loudly. अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और
लहू में सहभागी हैं, Yes. तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दिया और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से Now, what Jesus did on the cross? क्या किया यीशु ने क्रूस पर? Shaktihin, powerless. शक्तिहीन He कर दिया made the devil powerless. और यीशु ने शैतान को सामर्थ्यहीन कर दिया। Where he did it? कहाँ किया उसने? On the cross. क्रूस पर, By his blood. अपने लहू के द्वारा, By his blood. अपने लहू के द्वारा He destroyed his power. और यीशु ने शैतान को नाश कर दिया No. He destroyed his power. और यीशु ने उसकी सामर्थ को नाश किया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। What he did? He took all his weapons. सबसे पहले यीशु ने उसके सारे हथियारों को छीना Now he made him powerless. और अब उसने उसको सामर्थ्यहीन कर दिया। Can you believe it? क्या आप विश्वास करें? Yes. 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 And when Jesus was crucified, कहाँ पर यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया? and after Jesus rose from the dead, और जब यीशु मृतकों में से जीवित उठा, Revelation 1:18. प्रकाशित वाक्य 1:18 में Just loudly, जोर से पढ़े, quickly. बहुत जल्दी जल्दी। This is the truth. You need it. और ये सच की जरूरत है आपको You need this truth. और आपको जरूरत है इस सच की। When you know this truth, जब आप इस सच को जानेंगे you will be no longer afraid of the devil. और तब आप शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। Amen. आमीन। Listen. सुने मैं मर गया था और So देख I was died. मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। Now I am alive forever. और मैं जो हूँ युगान हमेशा के लिए जीवित हूँ। Then मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। who had the power of key and death? और किसके पास जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है, चाबी है? Before it was with devil. Before it was with the devil. उसके पहले The key of death and the hell was with devil. पहले जो थी मृत्यु की जो चाबी थी और नरक की जो चाबी थी वो शैतान के पास थी। But when Jesus died on the cross, परंतु जब यीशु क्रूस की मृत्यु उसने सही after he went into the hell. और जब वो नरक में गया He took all his key और उसने वहां से सारी चाबियां ली and rose from the dead. और वापस जी उठा And he said, now I have the key of और death अब कहता है कि and hell. मृत्यु और अधोलोक की जो कुंजियां हैं वो मेरे पास So है। that's why the church need to walk in victory. और यही कारण है कि कलीसिया को विजय में चलने की जरूरत है। After the resurrection, पुनरुत्थान के बाद Jesus declared that all authority of heaven and earth is given to me. और तब यीशु ने घोषणा करी कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। Why it was? Where the authority was? कहाँ था अधिकार? It was with the devil. वो शैतान के पास था। But now Jesus took his authority. और यीशु ने अधिकार को लिया And now he declaring all authority of heaven and earth is और given अब to वो घोषणा करा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। me. Did Jesus left any authority to devil? क्या यीशु ने कोई भी अधिकार शैतान के पास छोड़ा? No. नहीं। All authority. सारा अधिकार। Say all authority. कहे सारा अधिकार। जोर से बोले सारा अधिकार। Given to me. मुझे दिया गया है। All authority. Given to me. मुझे दिया गया है। Nothing is left. Nothing is कुछ भी left. छोड़ा नहीं गया है। That is why यही कारण है। before ascending unto heaven, और before Jesus ascended unto जब heaven, स्वर्ग में जाने से पहले he said these signs to follow those who believe in my name. और उसने कहा जो मेरे नहीं विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। He did not say they will preach only. उसने ये नहीं कहा कि हाँ केवल प्रचार करना। He said they will cast out devil in my name. उसने कहा मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमेन। What did Jesus declare they will cast out devil? सबसे पहले जो काम यीशु ने क्या कहा? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। Who will cast out devil? कौन निकालेगा? Small बच्चा लोग. छोटे बच्चे लोग। Amen. Thank you so much. I love you.